Jai Guruji. Anantam Shukrana Guruji for blessing us with this beautiful seva of reading as well as listening to the Shiv Puran. We begin with a synopsis of the last week. Last week we read chapter 14 and 15 of Shatarudra Samhita of the volume 3 of the Shiv Puran in English. In this we read that Lord Shiva was delighted by the penance of Brahmin Vishwanara and appeared in front of him in form of a little boy and granted him his desired boon that was to be born as his son. After getting the boon, the Brahmin was delighted and Lord Shiva vanished from there, and the Brahmin returned back to his home and told his wife Suchismati in detail about what had happened. The couple was delighted, and then in due course Suchismati was pregnant, and then after 8 months in the auspicious Lagna, Lord Shiva in form of a boy was born of Suchismati. Now, it was such an auspicious event, and the entire universe celebrated. All the gods and sages came there to visit the Lord, and Lord Brahma himself performed the postnatal rites of the boy, and on the 11th day named him Grihapati. After ensuring safety of the child, Lord Shiva returned to his abode, and all the other gods and sages also returned to their respective abodes. Now, this boy was duly serving his parents and was growing up, and in his 9th year, Narada visited Vishwanara's home, and there, after Vishwanara gave him all the due respect, Narada predicted the future fortunes of the boy. He also told the parents to be careful as this boy had danger from the thunderbolt and fire in the upcoming year. And hearing all this, the parents were extremely stressed and they were grieving and crying loudly. Hearing this, the parents crying, Grihapati asked them the reason for their grief. And after the parents told him the reason, he consoled them as he was a part of Shiva himself. He knew that none of it would be true. He told his parents that like Nandin, he would also seek refuge in Lord Shiva and would propitiate Lord Shiva. For that, he went to Kashi, where he saw a phallic image in form of Vishwanara. That phallic image was called Vishwanara, and then he decided that he's going to worship this phallic image with devotion, and he performed a severe penance for a year. His devotion and his worshipping continued thereafter, and then when he was in his 12th year, Lord Indra approached him and asked him to select a boon or choose a boon. So this boy was overconfident, and he told him that he did not need a boon from Indra, and he would choose a boon from Lord Shiva himself, and he would wait for that. Hearing all this, Indra was furious, and he aimed his thunderbolt with flames towards Grihapati. And just looking at that, Grihapati was frightened and he fell into a swoon. Now, afterwards, Lord Shiva appeared there and gently stroked this boy, and when this boy woke up, he told him that he just wanted to test his nature and his intent, and therefore had come in form of Indra to test him. He was blessed with his he was really delighted with his devotion and blessed him with the boons. For example, he gave him the name Agni, and he also made him the king of the guardians of the Kota. He also told Agni or Grihapati that the phallic image that he installed would be called an Ignishwara, and it will be a bestower of prosperity. And after granting him all the boons, Lord Shiva entered into that phallic image as Grihapati's parents, Suchismati and Vishwanara, watched the event happen. Now, with that, we can come to the end of the synopsis. Today, we will be reading these 2 chapters in Hindi. We do not have English reading, so we have 14 and 15 chapter in Hindi, and Raj Aunty will be reading today. Enjoy the readings. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji for giving me a chance
to read Shiv Mahapuran, अध्याय 14 and 15। शिव जी का सुचिस्मति के गर्भ से प्राकट्य। ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना। नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन। पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना। इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना। गृहपति का उन्हें ठुकराना। शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वीर वरदान देकर दिक्पाल पद प्राप्त करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुनस्तव की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमन संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के समान चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भू भवय स्वय तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर और मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रतापूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप में तथा वेद का विचार करके ये निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लोक की गति आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इस प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। तदंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जीहा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। तुम आदरपूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा ये पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से सम्मिलित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर भी गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा।
यूँ कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि ये तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यूँ कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचेष्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती धाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आंतनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ऐं ये क्या है, क्या हुआ, यूँ उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माता जी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपके चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ, चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाला सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। ये मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा, तुम उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवान, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से अनंत कंद ही है। वे कहने लगे, अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा और कोई नहीं। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी, जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी, इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए वचन को सत्य स्थापन करते हुए व्रजधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान,
मैं जानता हूँ आप व्रजधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्त शत्रुओं में मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही हैं ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहाँ प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वहाँ मांगों में गिरिजा देवी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटाओं से उनका अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगब धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे सतन करने लगे, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम व्रजधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और व्रज की कौन कहे। यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये तो मैंने तुम्हारे परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा और ना कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में मृत्यु को प्राप्त होगा, तो वह भी वहनी लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के समान उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्यवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़, पराक्रमी, जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्निश्री के तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र, प्रायण, ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरण करते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृत का
अग्नि संस्कार कर देता है, अतः स्वयं शक्ति न होने पर भी दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशंसित होता है। द्विज जातियों के लिए ये परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ आदि सब कुछ हैं। जितनी पावन वस्तुएं हैं वह सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। ये शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मृत मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बाण कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है? इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी, खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। जय गुरु जी। 14 अध्याय 14 और 15 समाप्त।